A very good morning to all. In this video, we will be just discussing our next topic, that is anomalous expansion of water. So basically, why is it known as anomalous expansion? Okay, so first let me clear you that this expansion of water is bit abnormal as we discussed about the other liquids. Okay, though water is also a liquid, but it behaves something abnormally if we compare it with other forms of liquid. Okay, so either we can just pronunciate it as anomalous expansion of water or abnormal behavior of water, and in further explanation you will come to know why it is abnormal behavior of water. Okay, for the other substance, we know that when we heat the substance, any substance, it expands. Okay, basically if I talk about liquid, it also expands on heating, and if I cool it, then it contracts. So for example, if I take liquid and if I cool it, it will contract and will become ice. Okay, and if I heat it, or if I heat any of the liquid, for example, if I consider, if I heat water as well, so it also turns into vapor. Okay, so this abnormal behavior is not for all the temperature, but it is only for a limited temperature, which is from 0 to 4 degree Celsius. Is that clear? So we will discuss how the water show abnormal behavior, or it behaves differently in comparison to other liquid within this range of temperature. So the unusual expansion of water when it is cooled from 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius is known as anomalous expansion of water. We already know that when we cool any substance or when we cool any liquid, so basically जब आप liquid को cool करते थे तो क्या होता था, वो contract होता था, वो contract होके किसी और solidify form में change होता था. But ये अनयूजुअल एक्सपेंशन ऑफ वाटर है. मीन्स इन केस ऑफ वाटर, इफ़ आई कूल इट, अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस से ठंडा करते करते टेम्परेचर इसका गिराएंगे 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की जगह क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है. ठीक है, और ये क्या है, ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है. बेसिकली ऑन कूलिंग द सब्सटेंस मस्ट गेट कॉन्ट्रैक्ट, बट what is happening here, the expansion process is taking place, and therefore it is known as anomalous expansion of water or abnormal behavior of water. So basically what is abnormal in it, कि other liquids क्या होते थे, कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट होते थे, बट वाटर कूल करने पे फर्दर 0 डिग्री तक जाने पे क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है. बट एज सून एज इट विल रीच 0 डिग्री सेल्सियस, बट एज सून एज इट विल रीच 0 डिग्री सेल्सियस टू, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में ये एबनॉर्मल दिखाता है. ठीक है, बट एज सून एज इट रीच 0 डिग्री सेल्सियस इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फॉर्म्स आइस. इज दैट क्लियर? नाउ it's bit blurred, but try to understand it. When water is cooled, okay, we are cooling a water, let us consider that the temperature of the water be normal at 6 degrees Celsius, and if we are further cooling it down, that means we are lowering the temperature from 6 degrees Celsius to 4 degrees Celsius. It first contract in volume, पहले क्या होगा, जैसे ही आप 6 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे, 4 डिग्री सेल्सियस तो ये बाकी लिक्विड्स की तरह कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, एंड उसके बाद अगर आप फर्दर कूल करते हो, मीन्स 4 से 0 तक जाते हो, तो यहाँ पे तुरंत ही अपने बिहेवियर को चेंज कर लेगा, और क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन की जगह एक्सपेंशन होगा. ठीक है, सो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, इट इज़ कूल्ड, एंड कूल होने पे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो 4 डिग्री सेल्सियस पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे पानी की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है. कॉन्ट्रैक्ट होके ये थोड़ा सा कोएगुलेट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा. सो टाइट होने पे या किसी भी सॉलिडिफाई फॉर्म में आने पे उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. एंड उसके बाद व्हेन इट इज़ कूल्ड फर्दर, एज द डेंसिटी डिक्रीजेस, अब इट इज़ कूल फर्दर तो क्या होगा, एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, फैलना स्टार्ट हो जाएगा. फैलने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, एंड बाय द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी वी नो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो नाउ इफ द वॉल्यूम विल इंक्रीज ऑन एक्सपेंशन, वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, सो इट स्टार्ट एक्सपेंडिंग एंड कंटिन्यूज, और ये एक्सपेंशन कब तक चलता रहेगा, जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ना पहुंच जाए. और इस 0 डिग्री सेल्सियस पे एज सून एज द वाटर विल रीच 0 degrees Celsius, it will solidify to form ice. Okay, so basically what I was
trying to explain you is that कि from 4 डिग्री सेल्सियस to 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, इस रेंज में जो टेम्परेचर, इस रेंज के टेम्परेचर में जो वाटर है ये थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर अपना शो करता है, एंड दिस बिहेवियर इज नोन एज एनोमलस बिहेवियर और एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। बेसिकली इसको एक्सपेंशन क्यों कहा गया है, क्योंकि आप हाइट से लो पे जा रहे हो, 4 से 0 पे जा रहे हो, सो वी आर कूलिंग, वी आर लोअरिंग इट, एंड वी नो दैट ऑन कूलिंग लिक्विड बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स, बट हेयर व्हाट इज हैपनिंग, इट इज expanding, water is expanding. So now this is the graph which is showing you, okay, this is volume versus time graph. Here it is shown कि जो volume है ये एकदम से 4 पे क्या हो गया है, मिनिमम हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि 4 पे डेंसिटी मैक्सिमम है। सो जब डेंसिटी ज़्यादा होगी, सबसे हाई जहाँ पे होगी डेंसिटी, वहाँ पे वॉल्यूम सबसे कम होगा, ठीक है। और फिर धीरे 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 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपना इंक्रीज़ होता रहेगा और डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर? So some of the applications related to some of the consequences of anomalous expansion is in cold countries atmospheric temperature pond का below 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, मीन्स नेगेटिव भी जाता है ड्यूरिंग द विंटर। तो भी एक्वेटिक लाइफ, जो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, इसी बिहेवियर के कारण जो एक्वेटिक लाइफ है वो ज़िंदा रहती है। नहीं तो इतने ज़्यादा ठंड में ये फ्रीज़ हो जाता पानी और एक्वेटिक लाइफ को सूटेबल कंडीशन नहीं मिलती। ये कैसे होता है, लेट अस डिस्कस इट। लेट अस कंसिडर दैट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 6 डिग्री सेल्सियस। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर लो जाता जाएगा तो ये पानी का टेम्परेचर भी चेंज होता जाएगा। ये 6 डिग्री सेल्सियस है, फिर ये 5 होगा, फिर ये 5, एंड स्लोली इट विल रीच टू, फ्रॉम 6 डिग्री सेल्सियस इट विल रीच टू 4 डिग्री सेल्सियस। एज सुन एज इट विल रीच टू 4 डिग्री सेल्सियस, जब ये सारे 4 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएंगे, लाइक दिस, इफ इट ऑल विल रीच एट 4 डिग्री सेल्सियस ऑन कूलिंग, अब क्या हो जाएगा, अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, जब आप और फर्दर कूल करते हो तो लिक्विड एक्सपेंड होती है, लिक्विड एक्सपेंड होती है। यहाँ पे अब आप 4 डिग्री सेल्सियस पे और अगर ज़्यादा कूल होगी तो इस लिक्विड में कॉन्ट्रैक्शन तो आएगा नहीं, ये बर्फ़ तो जमेगी नहीं, ये एक्सपेंड ही होती चली जाएगी। मीन्स लिक्विड और एक्सपेंड होगी तो क्या होगा, इट विल रिमेन इन इट्स ओन स्टेट ओनली, तो टेम्परेचर में कोई वेरिएशन भी नहीं होगा। टेम्परेचर कहाँ पे इफेक्ट करेगा, ओनली एट द टॉप लेयर, ओनली एट द टॉप लेयर, एंड स्लोली पहले ये 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा, फिर और कूल करेंगे 3, 2, 1 एंड 0, एंड फाइनली व्हेन इट विल रीच द टॉप लेयर विल reach at 0 degree Celsius, it will become solid or it will become ice, and we know that ice is a bad conductor, आइस इज़ अ बैड कंडक्टर। सो ये बाकी जो ट्रांसमिशन है वो पास नहीं होने देगा, ठीक है। आइस इज़ अ वेरी बैड कंडक्टर, सो ये हीट को पास नहीं होने देगा। अब हीट जब पास नहीं होगी तो क्या होगा, आइस इतनी बर्फ़ जम जाएगी कि नीचे तो एक्सपेंशन है ही, नीचे तो पानी है ही, जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ यहाँ पे ज़िंदा है। और ये जो ऊपर की आइस है दैट विल हेल्प पीपल जस्ट टू, जैसे आप पोलर बियर देखते हो ना, ऊपर बर्फ़ जमी रहती है, नीचे पानी, दिस इज़ ओनली द सेम एग्जाम्पल ऑफ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। Is that clear? This is how it will reach to the top surface, will reach to 0 degree Celsius, and the below one will be at 4 degree Celsius only. And this is one of the application that you can just easily slide on the ice. What are the consequences of anomalous expansion of water? First is this help in preserving aquatic life. अभी we have discussed कि ऊपर की जो टॉप लेयर है वही आइस में कन्वर्ट होती है और नीचे सूटेबल पानी ही रहता है, जिसके कारण टेम्परेचर में ज़्यादा कोई अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ्स को नहीं करता है। दिस फिनोमेना इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्स्ट ऑफ पाइप के फिनोमेना, या ठंड में क्या होता है, ये जो पाइप्स होती हैं ना, अभी आप कोल्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, ये जो पाइप है उसमें ऑब्वियसली पानी रहता है, तो जब टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसमें क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होने लग जाएगा। और पाइप में एक लिमिटेड स्पेस होती है, जब यही लिक्विड एक्सपेंड करेगा लो टेम्परेचर पे तो श्योरली क्या हो जाएगा, पाइप बर्स्ट हो जाएगी। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग कोल्ड नाइट, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग कोल्ड नाइट, कोल्ड नाइट में डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप क्यों होगा, क्योंकि जब एनोमलस एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर लो जाएगा पानी एक्सपेंड करने लग जाएगा, जिसके कारण जो कैपिलरीज होती हैं ना प्लांट में, ये बर्स्ट हो जाती हैं when the temperature goes below 4 degrees Celsius. And the capillaries, how they burst, because the water present in it expands and thus bursting of capillaries takes place. Okay, so this is what
is the anomalous expansion of water. Kindly try to read it from book itself, and that will help you in better understanding. Thank you.